Please join the session email link to mark your attendance. We would also like to extend our gratitude to Gets Pharma for their ongoing campaign, Help Aware Your Knowledge, Their Lifeline, under which this program is designed. This program consists of 6 sessions based on the new World Health Organization guidelines for hepatitis B for primary care physicians. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcement. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA, aiming to disseminate knowledge and best practices. Parsa ECHO Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. Our objective is for community providers to learn through video technology, participating in guided practice with specialist mentors. This allows them to treat patient otherwise referred out, ensuring patients with chronic condition receive high quality care without the need to travel and long waits. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted. However, we encourage participation, so you can unmute yourself for question or use the raised hand option or use the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Janassan Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. Please fill it out as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English with whichever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Professor Javed Farooqi, a distinguished figure in field of medicine, hepatology, and gastroenterology, currently serving at Life Care Hospital and Research Institute in Hayatabad, Peshawar. He holds the position of president at Pakistan Society of Hepatology for the term 2017 to 2018. His expertise and leadership contribute significantly to advancing healthcare in these critical specialties. He is involved with our ECHO program since its inception. We are presenting 2 cases today. Dr. Amna from Parsa Trust is our case presenter. So without further delay, I will hand over to her. जी, Uzair, Dr. Amna ने join कर लिया है, or otherwise I'll present the case and Dr. Farooqi is no, here. I don't think so. Okay. Sir, thank you very much. Farooqi साहब, it's a pleasure to have you here. मेरे ख्याल में हम we should stay on time. Dr. Amna का मुझे message तो मिला था कि she is joining, but I will share my screen and start with the first case. तो मैं केस से go through करूंगा और फिर फारूकी साहब जो हैं he will be just let me. Otherwise, I can share the case history. You had said we shared with me. Okay, that's great. जी जी, ये screen share हो गई है. आप you can see the screen. Okay. तो केस 1 है. ये हमने बेसिकली आज के टॉपिक के हिसाब से इसको देखा था और यूजुअली इस तरह से केसेस प्रेजेंट होते हैं आपकी प्रैक्टिस में. तो उसके बाद हम फारूकी साहब से इसको गो थ्रू करेंगे एंड आई कैन ऑलवेज डिस्प्ले दिस स्लाइड अगेन. तो दिस इज अ 20-year-old asymptomatic male who presents in our clinic for hepatitis B vaccination. He does not drink alcohol and there are no other comorbidities like diabetes or asthma or any other thing. Family history में father died of hepatocellular carcinoma at age 55. We do not know about the viral status of the father or on examination it's unremarkable. तो जो findings हैं जो कुछ labs की वो आपके सामने हैं. इस patient का जो complete blood picture है that is normal, creatinine is normal, ALT is 29, surface antigen is negative, anti-HBC which is hepatitis B core antibody total is positive, and
हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी, जिसको हम NTHBS कहते हैं, दैट इज पॉजिटिव। सो जो हमारे क्वेश्चंस हैं फारूकी साहब से, कि इस सिनारियो में वो हमें गाइड करें कि हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए पेशेंट को, और क्या इसको फॉलो अप चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेशेंट है जिसका NTHBC कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, और ये इस मरीज ने ये भी सवाल किया, जी मैं तो वैक्सीन करवाना चाहता हूँ ताकि मैं हेपेटाइटिस बी से बच सकूं, तो क्या हमें इसकी वैक्सीन करनी चाहिए? तो एक दफा फिर टेस्ट देख लें, सरफेस एंटीजन नेगेटिव, कोर एंटीबॉडी टोटल पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो देयर वी गो। सो जी सर, वी आर ऑल यस। Thank you very much, Asad, and thank you, Parza team, for inviting me. ग्रेट केस हिस्ट्री और ग्रेट केस सिनेरियो यही अमूमन होता है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं इस पे फिर थोड़ा सा जरा हम हाँ, ताकि ज्यादा डिस्कशन ही होगी, लेकिन बिल्कुल थैंक यू। तो ये केस हिस्ट्री है। असद भाई ने कह दिया कि इसके क्या लेब्स हैं, और जो मुझसे यानी वो जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन टू दिस पेशेंट। इसका अगर मैं नटशल में कहूँ या सिंपली बोलूँ तो ये है कि ये हमारी वो है कि हर एक पेशेंट को स्क्रीनिंग मस्ट करनी चाहिए। द रीज़न के millions of hepatitis B and C they are being missed। तो ये तो एडवाइस तो यही है कि नॉट ओनली ही ऑलरेडी देखें उसको, ही हैड बीन एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, तो ही नीड्स के वो अपनी फैमिली का भी तमाम फैमिली की स्क्रीनिंग कर ले। ऑलरेडी इसके फदर वो ही वाज डाइड बिकॉज ऑफ HCC। वी डोंट नो द वायरल स्टेटस, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद वो भी हेपेटाइटिस बी ही का पेशेंट था। तो एक तो ये कि हेपेटाइटिस बी सी स्क्रीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली की स्क्रीनिंग करे, और जो जो ससेप्टेबल हैं उनको वैक्सीनेशन तो करे। ये खुद करेगा कि इसको हम एडवाइस करेंगे नहीं करेंगे, इसको ज़रूरत है कि नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एट दिस वेरी टाइम कि he needs the full family screening, and of course इस पेशेंट्स को लाइफस्टाइल में भी he needs to be careful। ऑलरेडी अगरचे वो कोमोर्बिडिटीज नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, 20 years एज है, तो ही इज़ वेरी यंग, तो ही शुड बी हैविंग हेल्दी लाइफस्टाइल बिकॉज ये हेपेटाइटिस बी इसको हो चुका है। और इन सिंपल वर्ड्स ये जो सो कॉल्ड क्राइटेरिया होता है कि ये रिकवर्ड हो चुका है, हम देखेंगे कि रिकवर्ड से एग्जैक्टली हमारा क्या मुराद है। तो ही नीड्स टू बी हैविंग a good lifestyle, avoiding the possible hepatotoxic drugs, all those things। तो ये तो पहले क्वेश्चंस का है कि वी विल नीड के वो अपनी तमाम फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग करे, और जो इट्स रिस्क हो उनको वो वैक्सीन करें। एक और बात कि ये डज ही नीड फॉलो अप एंड डज ही नीड वैक्सीनेशन। तो इसके आंसर पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि चंद मिनट में थोड़ा सा एक और व्यू करूँ, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हेपेटाइटिस बी के हवाले से उन पे हम थोड़ी सी नज़र डाल दें, फिर आसानी हो जाएगी। और इस तरह के जितने भी सिनेरियोज होंगे सीरोलॉजिकली, तो वो हमें इजी हो जाएंगे कि उनको अकॉर्डिंगली हम फिर एडवाइस कर पाएंगे। वी ऑल नो कि जिस शख्स को भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो या तो वो सिम्टोमेटिक होता है कि उसको वही जॉन्डिस एंड ऑल दोस थिंग्स, या फिर वो कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक रह सकता है। ये हमने देखा हुआ है कि जिनको जो सिम्टोमेटिक होते हैं मोस्टली वो रिकवर भी कर जाते हैं। तो वो शख्स, अब जिस तरह के ये इनको भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ है, एक टाइम पे हुआ था, वेदर इट वाज नोटिस्ड और नॉट। तो जब भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है, उसकी नेचुरल हिस्ट्री ये है कि चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है, एट टाइम्स वो जो सो कॉल्ड हम कहते हैं कि रिकवर हो गया है, कि विद इन 6 months और समथिंग लाइक दैट,
वो HbS एंटीजन लूज कर जाता है, ठीक है। या अगर लूज नहीं करता तो वो एक क्रॉनिक फेज में गुजरता है, और क्रॉनिक फेज ये डेकेड्स पे मुहैयत हो सकता है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। और इसमें हम डिटेल में नहीं आएंगे कि, लेकिन वी नो कि डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है, उसके HbS पॉजिटिव होता है और वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है, जिसको इम्यून टॉलरेंट फेज भी बोलते हैं, फिर इम्यून रिएक्टिव, इम्यून कंट्रोल, इम्यून एस्केप। और कुछ लकी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो HbS एंटीजन लूज कर जाते हैं, और इस स्टेज को हम हमेशा अकल्ट हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि एक दफ़ा जिसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाए उसको लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी ही रहेगा। अब तक ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं आई कि वो रिकवर हो जाता है। तो हमारे पास दो सिनेरियोज हो गए, एक वो कि जिसको HbS एंटीजन पॉजिटिव है और वो किसी भी एक फेज में फॉल करता है, या फिर वो कि वो HbS एंटीजन लूज कर गया है, उसका डिसअपियर हुआ है, जिस तरह के हमारे इस पेशेंट में है कि HbS एंटीजन भी लूज है और एंटी-HbS भी आई है, लेकिन स्टिल दैट पेशेंट इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। इस पे अगर हम आगे जाएं तो जस्ट 1 मिनट रिकॉल ऑफ आवर बेसिक्स। वी नो के वायरॉन का द सरफेस एंटीजन जो कि स्मॉल होगा या मीडियम साइज्ड है या लार्ज साइज्ड है, ये एक एंटीजन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में लाता है। उसके बाद ई एंटीजन है, इसके बाद फिर ये कोर एंटीजन है, इसके साथ फिर हमारे DNA होता है, और उसके बाद DNA पॉलीमरेज होता है। एंड वी ऑल नो कि ये दीज आर द एंटीजन्स जो कि वायरॉन हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी के अंदर लाता है, और इसके अगेंस्ट जो बॉडी रिएक्शन का वो रिस्पॉन्ड करती है इन द फॉर्म्स ऑफ एंटी-HbS, ई एंटीजन के लिए इन द फॉर्म एंटी-HbE, कोर एंटीजन क्लिनिकली हम इसको चेक नहीं करते, अब एसेस अवेलेबल हो गई हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल या क्लिनिकल प्रैक्टिस हम नहीं करते, इसकी एंटीबॉडीज को हम चेक करते हैं। तो ये है जो एंटीजन जो वायरस अपने साथ लाता है एंटीजन्स, और ये है एंटीबॉडीज। तो अगर HbS एंटीजन है तो एंटी-HbS विल बी नेगेटिव। हमारे पेशेंट में अगर आप देखें तो HbS तो नेगेटिव हो गए, लेकिन एंटी-HbS पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ये भी हमारी सिंपल इम्यूनोलॉजी है। वी ऑल नो कि एंटीजन एंटीबॉडी, दिस इज द बेसिक्स ऑफ सेरोलॉजी। ये हमारा वायरॉन लाता है, ये हमारी बॉडीज को रिस्पॉन्ड करती है। और वी ऑल नो दिस के एक्यूट में तो वही होता है कि HbS एंटीजन पॉजिटिव होता है और विद इन 6 मंथ्स चला जाता है। इसके बाद IgM IgG कोर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि पॉजिटिव रहती हैं, और आखिर में एंटी-HbS जो है ना ये पॉजिटिव हो जाता है। ये एक्यूट सिनेरियो या जब पेशेंट रिकवर कर जाता है। क्रॉनिक में ऐसा नहीं होता, HbS भी पॉजिटिव रहता है और उसके साथ साथ कोर एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव होती हैं। यह अगर देखें तो हमारे पेशेंट में HbS एंटीजन नेगेटिव है, लेकिन इसकी कोर एंटीबॉडीज जो है ये एंटी-HbS भी इसका पॉजिटिव है और कोर एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा, फिर हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मुझसे हुए हैं इसको हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये मैं पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर कर चुका हूँ आपके साथ कि अगर हम फुल सीरोलॉजिकल प्रोफाइल देखें या एक हेपेटाइटिस बी का जो एक पॉसिबिलिटी देखें कि वो किस ग्रुप में हमारा पेशेंट लाई कर सकता है, या तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस बी में होगा, ये दिस इज द HBV इन्फेक्शन प्रेजेंट, या वो एक्यूट होगा या फिर क्रॉनिक होगा, या वो इसकी इम्यूनिटी हो चुकी है, यानी वो इम्यूनाइज्ड है। इम्यूनिटी मे बी बिकॉज ऑफ द पोस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन या बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। अगर हम किसी को वैक्सीन भी लगाते हैं तो हमने उसको इम्यूनाइज कर दिया, इम्यूनिटी दे दी, या उसकी इन्फेक्शन हुई, रिकवर कर गया, फिर भी सॉर्ट्स ऑफ इम्यूनिटी उसकी हो गई है। तो ये आप कर लें कि दिस इज द 2 मेन ग्रुप्स। फिर एक्यूट में भी ऑल नो कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो ये प्रोफाइल होगा कि HbS पॉजिटिव वगैरह, ये यू ऑल नो दैट। इस तरह डिपेंडिंग अपॉन अगर क्रॉनिक में है तो फिर इसका अपना प्रोफाइल है, इम्यून रिएक्टिव फेज में अपना प्रोफाइल है, इम्यून कंट्रोल में अपना प्रोफाइल है, इम्यून एस्केप में अपना प्रोफाइल है। बात यह है कि इन तमाम कंडीशन में HbS एंटीजन पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद फिर देखते हैं, और एंटी-HbS विल बी नेगेटिव, ये नेचुरल है। एंटीजन है तो एंटीबॉडीज नहीं होगी, और एंटीबॉडी आ गई तो सरफेस एंटीजन नहीं होगा। जो पास्ट इन्फेक्शन होती है उसमें फिर इसके रिवर्स होता है कि HbS एंटीजन नेगेटिव हुआ, एंटीबॉडीज HbS की पॉजिटिव आ गई,
ई एंटीजन बाद में चला जाता है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली चेक नहीं करते हैं। एंटी-एचबी को ये कोर एंटीबॉडीज के कोर एंटीबॉडीज थ्रूआउट पॉजिटिव रहेगी ऐसे पेशेंट में, और डीएनए पीसीआर डिपेंड करता है किस स्टेज में है, क्या वायरल लोड है, इसकी डिटेल में नहीं जाना। अगर किसी शख्स को इम्यूनिटी, वो इम्यूनाइज है, उसकी इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, तो यहाँ पे होएगा क्या कि इधर HBS एंटीजन विल बी नेगेटिव, एंटी-HBS विल बी पॉजिटिव, और ये दोनों मिमिक करते हैं। आया अगर उसकी इम्यूनिटी पास्ट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से हुई है या वैक्सीन से हुई है, दोनों कंडीशंस में सरफेस एंटीजन विल बी नेगेटिव और एंटीबॉडी टू HBS विल बी पॉजिटिव। फर्क यहाँ पे आ जाता है, अगर वो उसकी इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ दी पास्ट इन्फेक्शन, तो यहाँ पे कोर एंटीबॉडीज विल बी पॉजिटिव, और अगर उसको वैक्सीन लगी है और उसको वो वैक्सीनेटेड है, तो सरफेस एंटीबॉडीज तो पॉजिटिव होगी लेकिन इसकी कोर एंटीबॉडीज नेगेटिव होगी। तो ये फर्क होता है। हमारे पेशेंट में अगर आप देखें तो इसका सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, एंटी-HBS पॉजिटिव है, साथ में इसकी कोर एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स कि हमारे पेशेंट को पास्ट HBV इन्फेक्शन हो चुका है और उससे सो कॉल्ड ये रिकवर कर चुका है, और इस टाइम पे इसको हम वैक्सीन देंगे कि नहीं देंगे, ये ऑलरेडी इसका एक्सपोजर हो चुका है। लेकिन अब इसको फॉलोअप कैसे होगा या उसको क्या एडवाइस करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये माइंड में रख लीजिएगा कि सीरोलॉजिकली जब हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस की सीरोलॉजिकली या सीरोलॉजी पे कैसे हम वो करें कि वो किस फेज में लाई करता है, तो इससे मुराद उम्मन हमारी ये होती है सरफेस एंटीजन, एंटी-HBS और कोर एंटीबॉडीज टोटल, एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पेशेंट किस ग्रुप में फॉल करता है और हमने क्या एक्शन लेना है। एक और चीज जो कि हमें सोच समझनी चाहिए कि हेपेटाइटिस बी वायरल सीरोलॉजी ही तकरीबन हमें सब कुछ बता देती है। ये पहले मैं कह चुका हूं कि ये एंटीजन स्टेटस है, ये जो सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरल लाता है, ये एंटीबॉडीज हैं। प्रैक्टिकली ये तीन चीजें होती हैं, HBS, एंटी-HBS और कोर एंटीबॉडीज। अब थोड़ा सा इनकी कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह बताते हैं किसी भी पेशेंट के बारे में। न सिर्फ ये कि ये पेशेंट जिसकी हिस्ट्री हुई है, कोई भी पेशेंट हो, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे प्रोसीड करना है। HBS एंटीजन वी नो कि ये इन्फेक्शन बताता है या एक्यूट या क्रॉनिक, इसकी डिटेल में नहीं जाते, यू नो दैट। लेकिन HBS एंटीजन मीन कि अगर HBS एंटीजन पॉजिटिव है, इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन इन अ वे, यानी द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड। Anti-HBS means immunity, and this immunity may be because of the vaccination or maybe because of the infection. और anti-HBC means कि आया ये करंट इन्फेक्शन है या पास्ट इन्फेक्शन है। करंट इन्फेक्शन में IgM पॉजिटिव होगा, पास्ट इन्फेक्शन में IgG या जो टोटल होते हैं वो पॉजिटिव होगा। अब हम इन कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसका HBS एंटीजन भी नेगेटिव है, उसका एंटी-HBS भी नेगेटिव है और उसका कोर एंटीबॉडीज भी नेगेटिव है। ये जो मैंने कहा था कि हम इससे कहेंगे कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स की कॉन्टेक्ट की स्क्रीनिंग करें, तो अगर इसकी स्क्रीनिंग में ये तमाम तीनों चीजें नेगेटिव आई तो दोज शुड बी वैक्सीनेटेड। Those people, they are susceptible and vaccination should be considered. ठीक है ना, ये बात तो हमने सीख ली कि ये इन सीरोलॉजी से हमें कैसा हेल्प मिलता है और हम कैसे इस पे एक्शन लेते हैं। अब एक पेशेंट है जिस तरह के हमारा ये पेशेंट तो नहीं थे, इसका कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, लेकिन एक पेशेंट है जिसका एंटी-HBS पॉजिटिव है, HBS नेगेटिव है और कोर एंटीबॉडीज भी नेगेटिव है। इससे मुराद ये है कि इसको वैक्सीन लगी है और ये HPV वैक्सीनेशन की वजह से इसकी इम्यूनिटी आ गई है। वही 3 टेस्ट, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट सिनेरियोस को ये जन्म देती है। तो अगर सिर्फ एंटी-HBS पॉजिटिव है और एस एंटीजन और कोर एंटीबॉडीज दोनों नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स कि दैट पेशेंट इज इम्यून ड्यू टू HPV इन्फेक्शन। लेकिन जिस तरह के ये हमारा पेशेंट था कि HBS तो नेगेटिव है लेकिन कोर एंटीबॉडीज और एंटी-HBS दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस पेशेंट इज इम्यून ड्यू टू रिजॉल्व्ड HPV इन्फेक्शन, जिस ग्रुप में हमारा ये पेशेंट फॉल करता है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इन्हीं तीनों के साथ हम चलेंगे। एक पेशेंट, उसका HbS एंटीजन भी नेगेटिव है, उसका एंटी HbS भी नेगेटिव है, लेकिन कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। क्या पॉसिबिलिटी है? देयर आर एटलीस्ट 4-5 पॉसिबिलिटीज इन सच सिनेरियो। या तो ये डिस्टेंट रिजॉल्व HBV इन्फेक्शन है कि उसकी एंटी HbS एंटीबॉडीज का टिट्रिस भी बहुत कम हो गया और बहुत पहले, कोई 10-20-30 साल पहले उसको इन्फेक्शन हुआ था। ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये कोड एंटीबॉडीज का टेस्ट जो है, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिजॉल्विंग एक्यूट HBV इन्फेक्शन है, HbS भी चला गया है, अभी एंटी HbS नहीं आया और टोटल एंटीबॉडीज आ गई है, ये IgM IgG टोटल यानी वो जो है दोनों आ गई है। तो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। दिस कैन बी दैट वन। और इट्स अ पैसिव ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटी HBC। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मदर से बच्चे में वो पैसिव ट्रांसफर हुआ है, या अगेन it can be occult HBV infection. तो there are different possibilities. क्लिनिकली अमूमन ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती हैं, लेकिन हमें माइंड में रखना चाहिए कि इस सीरोलॉजिकल टेस्ट में अगर एक टेस्ट पॉजिटिव है, यूकोर एंटीबॉडीज है और बाकी दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनसे तीनों को आगे लेके चलते हैं। एक पेशेंट HbS एंटीजन पॉजिटिव, एंटी HbS नेगेटिव, ऑफ कोर्स जब एंटीजन होगा एंटीबॉडी नेगेटिव होगी, एंड कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव। या तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन जब IgM पॉजिटिव होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन जब टोटल कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगी। तो अगेन दिस थ्री serological tests, they are telling us another scenario, totally another scenario. Coming again to this case history, कि जो पूछा गया कि whether this patient should be going for the vaccination, or the patient, what advice should be. We know that कि इस ग्रुप में ये जो चीजें यही थी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इट फॉल्स इनटू इम्यून ड्यू टू रिजॉल्व HBV इन्फेक्शन। HbS नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये जो हमने सिनेरियो किए उसी सिनेरियो में फॉल करता है। अब इन दिस सिनेरियो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको टेबल बताई थी, सो व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन, ये तो हमने कह दिया कि उसको फैमिली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। डज ही नीड फॉलो? इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि अगेन जस्ट अ मिनट or two, इस पे आई नीड योर अटेंशन। HBV इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट एज एन एक्यूट शुरू होता है, विद इन 6 months रिजॉल्व हो जाता है। जिस तरह के हमारे ये पेशेंट है, इसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर, कि ये है फंक्शनल क्योर, कि जहां पे HbS एंटीजन नेगेटिव हो गया और PCR भी तकरीबन नेगेटिव हो गया, लेकिन cccDNA पॉजिटिव रहते हैं। तो दिस इज द फंक्शनल क्योर। अगर एक पेशेंट है जो कि एक क्रॉनिक फेज में गया, तो क्रॉनिक फेज में अमूमन होता क्या है कि HbS पॉजिटिव होता है, बाकी पैरामीटर्स नेगेटिव हो जाते हैं, कि E एंटीजन भी नेगेटिव है और वायरल लोड भी तकरीबन नेगेटिव हो जाता है, लेकिन HbS इज पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड पार्शियल क्योर। तो अगर HbS एंटीजन पॉजिटिव है, PCR नेगेटिव है, तो ये हो गया पार्शियल क्योर। अगर HbS एंटीजन नेगेटिव है और PCR भी नेगेटिव, दिस इज दी फंक्शनल क्योर। अब इस बात पे मैं लाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आए इसको फॉलोअप चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर ये तीनों चीजें नेगेटिव हो जाए, कि PCR भी नेगेटिव है, सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है और cccDNA भी नेगेटिव है, जो होता नहीं है करेंटली, कोई भी दवाई हमें ये नेगेटिव नहीं कराती और नेचुरली होता नहीं है, इससे बोलते हैं कंप्लीट क्योर। तो जो हमारे पेशेंट होते हैं, ये जो हमारे पेशेंट है, ही इज इन द फंक्शनल क्योर। और जो नेचुरली हो जाते हैं HbS उनका पॉजिटिव, दैट इज द पार्शियल क्योर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट किसी भी वक्त फंक्शनल क्योर से जिसका HbS एंटीजन नेगेटिव होता, वो बैक हो सकता है पार्शियल क्योर में। यानी देयर मे बी रीएक्टिवेशन ऑफ HbS एंटीजन, रीअपेयरेंस ऑफ HbS एंटीजन, इवन रिवर्जन।
एंटीबॉडीज चली जाती है, एचबीएस आ जाता है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और पिछले तो जो पीरियड्स डेटा है वो तो तकरीबन कोई 25 to 35% बोल रहे होते थे, अगरचे मैंने क्लिनिकली इतने ज्यादा प्रेवलेंस नहीं देखी है कि ये इतने नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन देयर इज अ रिस्क। एंड स्पेशली अगर ऐसे शख्स में कुछ कंडीशंस होती हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाता है या कुछ ड्रग्स कोई दी जाती हैं, वट एवर, वो एक और डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सो कॉल्ड रिकवर्ड केस जो कि फंक्शनल क्योर होगा वो रीअपेयरेंस हो सकती है और वो दोबारा रिवर्ट हो सकता है। सो हमारे इस पेशेंट्स को एक तो फॉलोअप चाहिए, इसलिए फॉलोअप चाहिए कि इज यंग, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो वन इज दैट कि यस दैट कैन रिकवर। एक और बड़ी बात, इसकी फैमिली हिस्ट्री में इसके फादर डाइड ऑफ एचसीसी। We don't know what was the etiology, लेकिन we presume this will be because of hepatitis B. तो family history of HCC, इवन जो नई गाइडलाइंस है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इवन अगर क्लासिकल क्राइटेरिया एक पेशेंट वो क्वालिफाई भी नहीं करता जिसमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है और उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC है, तो इवन इन दैट कंडीशन इसको ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है। वो उस बेस पे नहीं जा रहे हैं, वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी और शायद असद भाई ने आपसे पिछले उसमें डिस्कस किया था, लेकिन दिस पेशेंट डज नीड फॉलो। ठीक है, तो एक बात है, डज दिस पेशेंट नीड वैक्सीनेशन? ये ऑलरेडी उसको एक्सपोजर हो चुका है, सो दिस पेशेंट वैक्सीनेशन से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आई स्टॉप माय केस, या जो मैं स्लाइड्स शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, वी कैन डिस्कस दिस केस इफ यू वांट, और उसके बाद फिर हम दूसरे केस पे चले जाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई मीन वंडरफुल। आई मीन मेरे पिछली प्रेजेंटेशन पे इतना टाइम नहीं था कि इसको देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आप चैट में अगर देख रहे होंगे। एक सवाल ये है कि यूजुअली वी ओनली डू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इफ इट्स नेगेटिव देन व्हेन टू गो फॉर कोर एंटीबॉडी एंड एंटी एचबीएस। तो आप अगर हमें समझा दें कि हमें सरफेस एंटीजन पे ही इक्तफा कर लें या हम तीनों कराएं, या तीनों कब कराएं, चले इसको जरा आप आंसर कर दें। बिल्कुल, इट्स वेरी रेलेवेंट। और अमूमन होता यही है कि हम HbA एंटीजन करते हैं और बस इसको डिसाइड कर लेते हैं। मेरा ख्याल में कि हमें, और बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रिवेलेंस, HbA एंटीजन के साथ अगर एंटी HbA नहीं भी कर रहे, हमें कोर एंटीबॉडीज तो कर लेनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सीरोलॉजिकली जिस तरह के मैंने कहा कि हम तीन ही एटम्स हैं, HbA एंटी HbA, अगर कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है और HbA नेगेटिव है तो फिर आदमी मजीद कंफर्म कर सकता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच ये होगी कि कम से कम कोर एंटीबॉडीज चेक कर लेनी चाहिए, इफ दिस इज द मैटर कि हम उसको वैक्सीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आजकल के सिनेरियोज हैं जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं और चीज़ें भी दी जाती हैं। तो आई थिंक वी शुड बी मोर क्लियर। और इन द एरिया के जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास हैं हेपेटाइटिस बी के, तो मेरा ख्याल में कि वी शुड बी डूइंग एटलीस्ट दी कंप्लीट सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग, जो कि कम से कम 2 तो हम लेकर, मेरा अपना ख्याल है कि 2 तो कर लेने चाहिए। एंड दिस इज नाउ फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई एम डूइंग दिस 2, ये होने चाहिए। Okay. Or one question is hepatitis B core antibodies does not appear in blood. Why? Any reason? They do appear in blood. We Yes, have sir. 2 hepatitis B core antibodies, IgM, which is if positive, then it is acute hepatitis B, and IgG में generally if it is positive. अगर IgM negative है और IgG positive है तो then it's a case of chronic hepatitis B. तो Yes. ये ब्लड में मेजर होती हैं। Another question, आपने थोड़ा जिक्र भी किया कि ये पेशेंट सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है ड्यू टू अ प्रीवियस इन्फेक्शन। कैन वी वैक्सीनेट दिस पेशेंट? इस पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इसको वैक्सीन करें और आप उसको प्रिवेंशन उसके करवा लेंगे, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती है दिस इज अगेंस्ट दी वाइल्ड इन्फेक्शन और इसी से होती है। तो ये जो अगर म्यूटेंट्स वगैरह बनते हैं उसको मेरा ख्याल में प्रिवेंट नहीं करते। और बाकी ये कि आपकी जो वैक्सीनेशन होती है वो जो मैंने शुरू में कहा कि ये अगर इसके जीनोम में जाए तो प्री S1 है और प्री S2 है और तमाम चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में कि
मुझे तो खुद अपनी ऐसी स्टडी मैंने नहीं देखी है कि इस ऐसे ग्रुप को वैक्सीन किया गया है और उनकी प्रिवेंशन या रीअपेयरेंस बचा दी गई हो, लेकिन मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली इसका शायद फायदा नहीं होगा। असद भाई, अगर आप इस पे मजीद मेरी हेल्प आउट कर लें तो वी कैन आंसर दैट इन अ मोर उस वे, लेकिन प्रैक्टिकल मैं नहीं करता हूँ जी। I know. I probably agree with you. We have Altaf Alam Sab here. If he has anything to add, if he's, जी सर, मुश्किल सवाल आपके लिए सारे। वेरी गुड डिस्कशन ऑन द केस। स्क्रीनिंग के लिए अगर आप गाइडलाइंस पर जाएं तो ट्रिपल पैनल रेकमेंडेड है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सिर्फ सरफेस एंटीजन करते हैं, वो नेगेटिव है और आप वैक्सीन कर देते हैं, और आपने anti-HBs और anti-HBC नहीं किया और वो पॉजिटिव था जैसे हमारे पेशेंट में है, तो वैक्सीन का कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं होगा। आपने एक तरफ 1,000 रुपए बचाया और दूसरी तरफ 1,200 रुपए का टीका लगा दिया। सो ये आपने बैलेंस करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। रिकमेंडेशन पर जाएं तो ट्रिपल पैनल इज रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी जो आपने क्वेश्चन भी रेज किया वो बिल्कुल सही है कि हम जनरली सरफेस एंटीजन चेक करते हैं टू सेव कॉस्ट। अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर हम इलाज के लिए इवैल्यूएट कर लेते हैं, नेगेटिव आए तो हम चाहें तो anti-HBC और anti-HBs चेक कर लें या डायरेक्ट वैक्सीन कर दें। सो रीजनेबल प्रैक्टिस रीजन टू रीजन वेरी करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन ट्रिपल पैनल की है फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। जी असद साहब। Another question is, इसी से रिलेटेड है। यही पेशेंट जो अंडर डिस्कशन है, इसका anti-HBs टाइटर इज लो, समझेंगे बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आया है, तो क्या इसको बूस्टर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसमें दो चीज़ें हैं कि ये चीज़ थी जब इनिशियल स्टडीज आई थी और ये इंजेलिक्स वगैरह के साथ के लेस देन 10 है या लेस देन 100 है, और क्या बात थी कि अगर लेस देन 10 यूनिट्स हैं तो वो शायद इसको जो है ना फुली वो नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। मोर देन 10 है, क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, ये हाई रिस्क है, उसमें मोर देन 100 भी चाहिए था। मेरी अपनी पर्सनली वो ये है कि जो सेम मे बी के मैं शायद ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर एक तो ये कि विद टाइम इनकी लेवल कम हो जाती है, लेकिन अब तो बूस्टर वाली वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी जा रहा है। इवन अगर एक पेशेंट को उसने एंटीबॉडीज दी हैं और उसका अगर कहीं इन्फेक्शन भी होता है, टू मी दैट इज अ बूस्टर डोज। वो ऑलरेडी उसकी एक्सपोजर हो गई है, उसको एंटीबॉडीज उसके बॉडी में है, वो सेंसिटाइज हैं, एंड दैट कैन गिव। ये कुछ ऐसी केस रिपोर्ट्स भी हैं और स्टडीज भी हैं कि जहाँ पे जब उनको प्रिक हुई तो वो प्रिक ने उसको एज अ बूस्टर डोज एक्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंसिटाइज हैं और उनकी मेमोरी सेल सेंसिटाइज हैं एंड दे डू दैट। लेकिन बूस्टर डोज पे इनको लगाएं कि ना लगाएं, यस अगर आप समझते हैं कि बोई हाई रिस्क है या स्पाउस है तो, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कैन गो डाउन, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन कोई प्रिक होती है तो दे डू रिस्पॉन्ड। अल्ताफ साहब आज के थोड़ा सा मजीद एजुकेट करें, क्योंकि यू आर द अथॉरिटी ऑन हेपेटाइटिस बी इन एटलीस्ट इन आवर सर्कल। राइट, सॉरी मैं जरा दूसरी तरफ देख रहा था। मुझे ब्रीफली बता दें, पूछना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि यही पेशेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका जो anti-HBs बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आता है, कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, anti-HBs इज बॉर्डर लाइन पॉजिटिव, तो क्या बूस्टर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नो, देयर इज नो रोल। जैसे फारूकी साहब ने बताया कि एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, इसलिए ही बूस्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। सो एक हेल्दी एडल्ट में अगर आप वैक्सीन के जरिए या इन्फेक्शन के जरिए एक्सपोजर हो गया है और उसकी सीरो कन्वर्शन हो गई है, यानी anti-HBs अपीयर हो गई है सीरो प्रोटेक्टिव लेवल की शुरू में, आप इसका 10 साल पहले चेक करते तो anti-HBs थाउजेंड्स में होती। अब आप चेक कर रहे हैं वो 10 से कम भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो नीड टू वैक्सीन। इसका अगर एक्सपोजर हो भी गया तो एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स से
sufficient antibodies body में आ जाएंगी और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी. So vaccination is no, Okay. even if the ठीक है. titer is less. तो वेरी क्विकली हमने सेकंड केस पे भी जाना है. मैं एक और सवाल है, न्यू बॉर्न इन्फेंट में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर. तो इसमें ये हम अलग से डिस्कस करेंगे. प्लीज स्टे ट्यून विद अस. इसमें जो सिर्फ रिकमेंडेशन है वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन की है और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. सिर्फ इसको जहन में रखें. तो आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट केस ताकि फिर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें. सो let me share my screen. Okay. तो ये जो पेशेंट हैं, अगर आप इसको देख सकते हैं तो 25 years old हाउसवाइफ हैं with complaints of generalized weakness and she is 6 weeks pregnant. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है. नो कोमॉर्बिड्स एंड देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएलडी और लिवर कैंसर. और एग्जामिनेशन पे देयर इज शी इज अनरिमार्केबल. इनके जो लैब पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने हैं. रीनल फंक्शन इज फाइन, सीबीसी इज फाइन, एएलटी इज 42, सरफेस एंटी-एचसीवी हेपेटाइटिस सी इज नेगेटिव, सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव और पीसीआर करवाया है क्वांटिटेटिव विच इज नॉट डिटेक्टेड. तो अनदर कॉमन केस सिनारियो, यूजुअली यही टेस्ट है जो हम करते हैं. तो अब क्वेश्चन ये हैं कि इस प्रेग्नेंट फीमेल को व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन एट सम स्टेज इन फ्यूचर. क्या हम उसके टेस्ट रिपीट करेंगे एंड इफ यस देन व्हेन. और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जिसका मैंने बड़ा ब्रीफली आंसर किया है. इफ लैब्स रिमेन द सेम. तो जी सर, ओवर टू यू फारूकी साहब. Thank you very much. Yes, this is the one of the most common scenarios के जो हमारे पास आते हैं. इसमें यही है कि उस पे आने से पहले कि प्रेग्नेंट लेडी विद हेपेटाइटिस बी, तो जिस तरह की ये पेशेंट है कि जो अभी एंटीनेटल स्क्रीनिंग में उसको मालूम हुआ कि एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है और पीसीआर उसका नेगेटिव है. कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव, तो वो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. या तो ये कि दैट लेडी बाय हर सेल्फ उसको ट्रीटमेंट चाहिए और वो ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो खुद तो ट्रीटमेंट के एलिजिबल नहीं है, लेकिन हम ये सोचें कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकती है. तो ये दो सिनेरियोज हो जाती हैं. तीसरी सिनेरियो ये चीज़ होती है कि एक मदर है जो कि प्रेगनेंसी से पहले बी हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट ले रही थी. तो उसको लिए क्या करना चाहिए, उसमें सिर्फ एक लाइन कर लेंगे कि अगर एक मदर है और वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट पे है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो शी शुड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड दिस वाज टेनाफिवर. टीडीएफ था, टेफ पे आपने नहीं डालना. टेफ पे भी स्टडीज आ रही हैं, लेकिन टीडीएफ हम टेनाफिवर पे जारी रखते हैं. अगर वो इंटाकावेर पे थी तो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेनाफिवर पे आ जाते हैं. ये एक वन लाइन था. ये जिस तरह की ये लेडी है कि इसको पीसीआर नेगेटिव है, तो अगर इसका पीसीआर पॉजिटिव होता और ये क्वालिफाई करती पर से अपने लिए ट्रीटमेंट के लिए, फिर तो शायद फिर हम उसको 4th मंथ में ही शुरू करवा देते. लेकिन चूंकि इसका एचबीएस पॉजिटिव है, पीसीआर नेगेटिव है, तो ये पॉसिबिलिटी देखने के लिए कि आया ये ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं. ट्रांसफर के लिए ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव पीसीआर और हाई वायरल लोड और ई एंटीजन, अगर उसका वायरल लोड 200,000 से ज़्यादा है यूनिट से, या उसका ई एंटीजन पॉजिटिव है, और ये फिर हम करते क्या है कि अमूमन 7 मंथ पे या जी सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा मदर का ख़त्म हो रहा होता है, तो हम वी रिपीट दैट और उसके बाद फिर वायरल लोड चेक करते हैं. इफ़ द पेशेंट क्वालिफाइज फॉर, या कंडीशन आ जाती है कि अब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकती है, तो उसमें फिर हम
मदर को टेनाफोर पे शुरू कर देते हैं, TDF पे शुरू कर देते हैं, एंड दैट कंटिन्यूज। और जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो विद इन 12 to 24 months hours the child should receive the first dose of the vaccine as well as the HBIC. वो डोज इसको मिलनी चाहिए। HBIC की 1 इंजेक्शन डोज है, एंड इट शुड बी within 12 hours of delivery or maximum 24 12 hours में हो, इट्स गुड। और उसके बाद फिर वो बच्चा अपनी उसकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाती है, 3 डोजेस पूरी हो जाती हैं। और जब तक उसकी 3 डोजेस पूरी ना हो, हम अमूमन करते क्या है कि हम उसको मदर को, अगर हमने उसको वर्टिकल प्रिवेंशन ट्रांसमिशन प्रिवेंशन के लिए एंटीवायरल पे शुरू किया था, तो 3 मंथ्स तक या 6 मंथ्स तक, मैं 6 मंथ्स तक देता हूँ। वी कंटिन्यू दैट वे। आजकल जो गाइडलाइंस है उसमें नहीं जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मजीद ज़रा ईजी वो हो जाता है कि वो जो थ्रेश होल्ड है फॉर मदर ट्रीटमेंट वो ज़रा मजीद लोअर डाउन हो गया है। लेकिन ट्रेडिशनली यही है कि वी चेक रिपीट अगर नेगेटिव है, एंड देन वी सी के इसको मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। जस्ट आई नीड योर 1 मिनट ओवर हेयर। ये इसी पे ही जो हमारा WHO की जो नई गाइडलाइन है उसके एल्गोरिथम के 1-2 स्लाइड्स हैं जो कि अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें द सेम इज कि प्रेग्नेंट HBS एंटीजन टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, हम प्रेग्नेंट वुमेन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर HBS एंटीजन नेगेटिव है इट्स ओके, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर आप देख लीजिएगा कि असेसमेंट फॉर दी एंटीवायरल अगर मदर की अपनी है तो वो शुरू कर देते हैं, नहीं हुआ तो फिर वायरल लोड पे चेक करते हैं कि लेस देन 200,000 या मोर देन 200,000, और अगर लेस देन 200,000 है, इंडिजन नेगेटिव है, तो नो मैटरनल टेनाफर प्रोफिलैक्सिस। लेकिन अगर पॉजिटिव है देन वी गिव फॉर दैट प्रोफिलैक्सिस। और इस पे यही बात है कि ये ऑलरेडी इस पे मेरे ख्याल में डिस्कस हो चुका होगा कि जो इंडिकेशंस होती हैं वो मदर के लिए क्या होंगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि द चाइल्ड शुड बी गिविंग द डोजेस ऑफ द 3 वैक्सीन। फर्स्ट डोज मिलनी चाहिए, एंड विद इन 12 to 24 आवर्स उसको HBIC भी मिलनी चाहिए। तो दिस विल बी मजीद मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम भी हमारा से हो जाएगा। लेकिन दिस इज हाउ वी गो अबाउट इन दिस सिनेरियोस। जी असद भाई, डिस्कशन कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी थैंक यू। मैं वेरी क्विकली इसकी एक ये क्योंकि पिछली दफा भी हमने थोड़ा कवर किया था, ये वही है जो आपने दिखाया है। आई होप कि यू कैन इसकी थोड़ी सी ये जरा आप पढ़ लें। ये जो अभी फारूकी भाई ने भी डिस्कस किया है कि इसको हम किस तरह लेंगे। तो जो जैसे हमने बात की, अगर DNA लेवल इज मोर देन 200,000 और ई एंटीजन पॉजिटिव है तो प्रोफिलैक्सिस देना है टेनाफोविर TDF का, डाइसोप्रॉक्सिल फ्यूमेरेट का। और जो दूसरी चीज ऐड की है जो अभी गाइडलाइन में भी आपने देखा होगा, आई जस्ट रीड इट to address the continued significant challenge in accessing hepatitis B DNA or even E antigen serology testing to determine eligibility for antiviral prophylaxis, a new conditional recommendation provides the option of using antiviral prophylaxis for all surface antigen positive pregnant mothers. तो अगर आपके पास DNA अवेलेबल नहीं है और E एंटीजन सेरोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है तो आप सरफेस एंटीजन पॉजिटिविटी पे ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली ये हर जगह अवेलेबल है। तमाम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास यूजुअली ये ऑप्शन नहीं है। ये अफ्रीका में और बाकी जगहों के लिए WHO ने की है, और जहाँ पे यूजुअली इसके जो प्रेवलेंस रेट है वो हाई है। लेकिन जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड क्योंकि ये आपको आगे थोड़ा सा लेवरेज दे रहा है। और आगे वही बात है कि जो प्रोफिलैक्सिस है दैट शुड बी फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल एटलीस्ट डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन सीरीज। तो ये आपको हमने रिवाइज भी करा दिया है और कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अब एनी क्वेश्चन इस रिगार्ड में?
आई एम वेरी असल में हैप्पी। जो वो जो दो जी सर। क्वेश्चन थे वो तो आंसर हो गए, जो अब्दुल गफ्फार जी साहब ने पूछे थे वो दोनों ही हो गए मेरे ख्याल जी, में। दोनों ही आंसर हो गए हैं तो इसमें, और ये इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान में रखें कि बच्चा अगर वर्टिकली ट्रांसमिशन ले लेता है तो तकरीबन हर बच्चा, 10 में से 9 बच्चे जो है दे विल बी क्रॉनिकली इन्फेक्टेड। तो यस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, बिकॉज दैट इज यू नो सबसे बड़ा रूट है इसके हेपेटाइटिस बी के आगे स्प्रेड का। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नंबर्स नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी ये नंबर्स ज्यादा ही हैं। एक और चीज जो मैंने देखी है, मेरे कोलीग्स या जो पेशेंट्स आ जाते हैं कि मदर्स होती हैं वो ऑलरेडी, ये शायद तो मैं बहुत से केसेस देखे, वो ट्रीटमेंट पे है, बड़ा सही कंट्रोल है, उसकी प्रेगनेंसी हो गई है, और स्पेशली गायनाकोलॉजिस्ट हमारी बहनें उसकी वो ट्रीटमेंट बंद कर देती हैं। कहते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप ये एंटीवायरल बंद कर दें। और हमारे पास आती हैं, उनका सी फ्लेयर होता है, वो उतना आप रिकॉर्ड देखते हैं बिल्कुल ही कंट्रोल होती हैं, और देन दे डू, क्योंकि ऑलरेडी नो कि प्रेगनेंसी में भी वो दे कैन इवन हैव द प्रमोशनल फॉर द वायरल रेप्लिकेशन। तो ये चीज़ ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास पेशेंट है और उसकी प्रेगनेंसी है और एचबीएस पॉजिटिव है, ज़रा उसकी हिस्ट्री पूछें, आया आप ट्रीटमेंट ले रही हैं नहीं ले रही हैं, मे बी दिस इज़ दी ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, तो उस ट्रीटमेंट को बंद ना करें। हाँ ये है कि अगर वो इंटाकावर पे है तो उसको टीडीएफ पे ले आइएगा, ये बात है। क्योंकि जब आप उसकी ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं तो उमूमन हम डिस्कस करते हैं कि उसमें जो रिबाउंड फिनोमिना होता है, ये जो ब्रेक थ्रू, जो फ्लेयर होता है, वो ये सही जो है ना, आई मीन पर उस वक्त इवन पेशेंट मदर को भी नुकसान हो सकता है, दे कैन गो इनटू एन एक्यूट लिवर फेलियर, ऑल दोस थिंग्स। तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि प्रेग्नेंट लेडी with HBS, either the patient may need treatment for herself or she will be on treatment for herself, या vertical transmission। तो ये थोड़ा सा जरा इस पे हमें जरा ग्रुप करना चाहिए कि हमारे पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। जी सर, ये क्वेश्चन है, ये जो केस इन क्वेश्चन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, इस प्रेग्नेंट फीमेल न्यूबॉर्न शुड ही रिसीव इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ओनली एक्टिव इम्यूनाइजेशन? अगर ये पेशेंट जो है, इसको हमने अगर इसका हमने वायरल लोड चेक किया और वायरल लोड उसका पॉजिटिव आया या ई एंटीजन पॉजिटिव आया, तो फिर तो जो है ना, द पेशेंट नीड्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसको वैक्सीन भी चाहिए और इसको एचबीएक भी चाहिए। हाँ अगर पेशेंट्स को हमने वो एंटीवायरल को मार्क दिया है या वो फुल क्वालिफाई नहीं कर रही थी फॉर दैट, कि वायरल लोड वगैरह कम था, और तो दैट कैन बी वन कंडीशन कि हम उसको वो ना करें, एचबीएक ना दें। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अब तक कोई ऐसा नहीं किया, हर एक को तो मैं एडवाइस करता हूँ ऑन दैट शुड बी। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे अगेंस्ट दी, एक होती है ना कि स्टडी या डेटा आपको बताता है, एक होता है कि प्रैक्टिकली आप क्या फेस कर सकते हैं। तो उधर जो है ना, मोर देन 90% चांस है ऑफ बेबी बिकमिंग हेपेटाइटिस बी। तो मेरे ख्याल में मैं पर्सनली कभी नहीं बोलूँगा कि एचबीएक ना दें, सिर्फ टेनाफेर पे आप वो करें, या सिर्फ वैक्सीन पे वो करें। गोइंग फॉर बोथ, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, क्योंकि द मोर यू आर एग्रेसिव इन प्रिवेंशन द मोर इट विल बी फ्रूटफुल टू यू। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन किसी पिक्यूलियर फिनोमिना से वजह से नहीं हुआ तो वो और बात है। अल्ताफ साहब इस पे थोड़ा सा हमें गाइड करने की वो क्या करेगा। मैं तो आई विल बी गोइंग फॉर बोथ, मैं कभी जो है ना ऐसा जी देयर इज नो डाउट, बिल्कुल फारूकी साहब, बोथ एक्टिव एंड पैसिव वैक्सीन, चाहे आपने टीडीएफ दिया है या वो पेशेंट की वायरल लोड कम था और उसको आपने टीडीएफ प्रोफिलैक्सिस नहीं भी दिया, दोनों कंडीशंस में आपने एक्टिव एंड पैसिव वैक्सीन जरूर करनी है। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि एच बिग और फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन within 12 hours to 24 hours. कुछ गाइडलाइंस आपको विद लेस देन 12 hours कहती हैं, कुछ 24 hours कहती हैं, बट एज अर्ली एज पॉसिबल और सून आफ्टर बर्थ दोनों चीजें, एक साइड पर, एक थाई पर आप उसको एंजेरेक्स बी दे देंगे और एक थाई पर आप एचबिग लगा देंगे। सो ये रिकमेंडेशन है जो कि बहुत स्ट्रांग है
और इस पे डिविएट नहीं करना चाहिए। सर मैं करता Thank you. क्या हूँ, तो मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं और यही है, तो मैं कहता हूँ कि जो EDD है उससे हफ्ता 2 हफ्ते पहले आप एक बिग लें, रखें फ्रिज में, क्योंकि कभी कभार इसका अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है। और यू शुड बी गोइंग कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है विदिन 12 आवर्स दें। मैं तो विदिन 12 आवर्स से आगे ले जाते भी नहीं हूँ, और उनसे यही बोलता हूँ कि अपने साथ ये रेडी रखें। अगर उस डिलीवरी के टाइम आ गया, आपने अरेंज किया नहीं है, फिर मुझे मिस हो जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा जरा स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे का हम पे हक है मेरे ख्याल में कि वी शुड बी प्रिवेंटिंग दैट। ये हम, वो उसका हक है को जो है ना कि हम ट्रांसमिशन को बचाएं। दिस इज समथिंग। जी थैंक यू। ये क्वेश्चन था जो हमने पिछली प्रेजेंटेशन में बात की थी कि 2000 का वायरल लिमिट है। तो ये यूजुअली तमाम पेशेंट्स के लिए, अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के लिए हमने बात की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चाइनीज गाइडलाइन है, वो जो डॉक्टर जावेद फारूकी साहब की प्रेजेंटेशन है, वो तो क्वांटिटेटिव करते ही नहीं है, वो तो आप क्वालिटेटिव के ही पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो वो फिर जब अगर आप क्वांटिटेटिव कर ही नहीं रहे, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, तो वायरल लोड तो सिर्फ डिटेक्टेड और नॉन डिटेक्टेड में बात खत्म हो जाती है। तो ये जो जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड है, उसमें 200,000 यूनिट ये जो हम बात कर रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी चेंज हो जाएगा। अभी अल्ताफ साहब ने भी बताया, फारूकी साहब ने भी बताया कि सरफेस एंटीजन पे ही शायद हम फैसले कर रहे हो, क्योंकि हमने स्पेशली इम्यूनाइजेशन के कंटेक्स्ट में तो ये जरूर हमें देखना चाहिए। तो अब थैंक यू वेरी मच, इट इज अबाउट टाइम। किरण, आप बता सकती हो कि नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हैं? और आई थिंक स्पीकर प्रोफेसर अल्ताफ आलम साहब हैं। जी, नेक्स्ट हमारा 28 को यानी नेक्स्ट वेडनेसडे है, और केस बेस्ड डिस्कशन ही है, हेपेटाइटिस बी इन हेल्थ केयर वर्कर्स, हेपेटाइटिस बी एंड HCC, और प्रोफेसर अल्ताफ आलम साहब हैं। जी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे रिलेटेड हेपेटाइटिस बी इन हेल्थ केयर वर्कर्स और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो काइंडली आप जरूर शेयर करें। आपके पास नंबर्स हैं उज़ैर के, गेट्स की टीम है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गेट्स फार्मा जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनके साथ, ताकि अगर वो क्वेश्चन पहले आ जाएंगे, मे बी हम उससे रेलिवेंट एक स्लाइड डाल दें ताकि वो एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि वी रियली लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू किरण, प्लीज। Thank you very much. Thank you very much, Professor Farooqi Saab. And we are grateful and thankful to our team at Parsa Trust and Parsa Eco Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting, please. Sure, ma'am. Thank you very much.